یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ زمین کے خداوند کے سامنے مطلب خداوند یسوع مسیح ناصری کے سامنے۔ ہلیلویہ! کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ اس زمین پر آئے۔ تو ویسے تو ہم جب یہوہ خدا کو دیکھتے ہیں تو خداوند خدا آسمان کا خدا بھی ہے اور زمین کا خدا بھی ہے، لیکن یہاں پر آسمان و زمین کے خدا کی بات نہیں بلکہ زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے جو پہاڑ پر واقع ہوئی تھی۔ وہاں پر موسیٰ اور ایلیاہ جو ہے وہ آئے تھے اور پترس نے، یوحنا اور یعقوب نے انہیں دیکھا تھا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ بات لکھی گئی کہ زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہی جو ہے کیا ہوں گے؟ ممسوح ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ بڑی خاص ہے۔ وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ملاکی کی کتاب میں خداوند خدا نے یہ بات کہی کہ ایلیاہ جو ہے آئے گا، ملاکی کی کتاب میں وہ کہتا ہے ایلیاہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح متی کے انجیل میں کہتے ہیں البتہ پہلے ایلیاہ آئے گا اور سب چیزیں بحال کرے گا۔ ہلیلویہ! لیکن ابن آدم کے حق میں کیا لکھا ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ یہ دونوں باتوں کو جوڑنے کا خداوند یسوع کا خاص مقصد ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ساری بات کو سمجھیں، ہمیں جو ہے 2 گواہوں کے بارے میں ایک خاص بات کو نوٹ کرنا ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ یہ جو 2 گواہ ہیں یہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اور اگر ہم بات کریں موسیٰ اور ایلیاہ کی، تو جب ہم موسیٰ اور ایلیاہ کی بات کریں گے تو موسیٰ اور ایلیاہ کا دوبارہ کس طرح سے آنا ہوگا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات جو یہاں پر یہ کر رہا ہے کہ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور چراغ ہیں، وہی کا مطلب وہ بتا رہا ہے کہ جو زکریا کی کتاب میں جو بتائے گئے ہیں کہ یہ 2 ممسوح ہیں، وہاں پر 2 ممسوح لکھا گیا اور زیتون کے درخت بھی لکھا گیا، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں زکریا کی کتاب۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ یہ دیکھنا میں چاہتا ہوں، یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے خدا کا روح جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے شروع سے جب نبی ہوتے آئے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے کوئی نبی جو پہلے ہو چکا وہ پھر دوبارہ سے، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے وقت میں بھی کیا ہے، جب یوحنا اصطباغی سے پوچھا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو ایلیاہ ہے، کیا تو جو ہے وہ نبیوں میں سے کوئی ہے؟ تو اس سے جب یہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، میں ایلیاہ نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی جی اٹھا ہے اور اس سے معجزے ہوتے ہیں۔ یرمیہ ہو سکتا ہے، ایلیاہ ہو سکتا ہے، وہ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی سوچتے۔ لیکن کیا بائبل مقدس میں کبھی ایسا ہوا کہ ایک نبی پہلے آیا ہو، اس کے بعد پھر وہی نبی اسی حالت میں دوبارہ آیا ہو، مطلب کہ وہ فزیکلی جیسے پہلے تھا پھر ویسے آیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا صرف سوچا جاتا تھا، ہوا نہیں۔ لیکن اگر ہوا ہے تو پھر اس طرح سے ہوا ہے کہ ایلیاہ آیا، اور ایلیاہ جب دوبارہ آتا ہے تو یوحنا اصطباغی جو ہے اس کو ہی ایلیاہ کہا گیا جب دوبارہ آتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات ظاہری طور پر نہیں بتائی گئی کہ یوحنا اصطباغی جو ہے وہ ایلیاہ ہی ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور لکھا گیا بائبل میں کہ وہ سمجھ گئے کہ وہ یوحنا اصطباغی کی بابت کہہ رہا ہے کہ پہلے ایلیاہ کا آنا ضرور ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ایلیاہ آ چکا، انہوں نے جو اس کے ساتھ چاہا وہ کیا۔ ہلیلویہ! تو وہ بائبل میں لکھا ہے کہ شاگرد سمجھ گئے کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی
नबी दोबारा से आता है तो उसका मतलब ये है कि खुदावंद खुदा उसकी रूह में किसी को चलाता है। अब जब यूहन्ना इस्तबागी से पूछा गया तू एलिया, वो कहता मैं एलिया नहीं हूँ, मैं एलिया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने यूहन्ना हूँ, मैं यूहन्ना हूँ। लेकिन वो रूहानी तौर पर किसकी रूह में चल रहा है, किसके मिशन को पूरा कर रहा है? एलिया के मिशन को पूरा कर रहा है। एलिया की जो खिदमत रह गई थी उसको वो पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम उसको एलिया ही लेंगे। तो ये जो बात है, जिस राह से सब जाते हैं उनको उसी राह से जाना है, और जिस राह से सब आते हैं उनको उसी राह से आना है। ऐसे नहीं है कोई आसमान से गिरा है वो मुनादी करना शुरू कर दे, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह जिनको बगैर बाप के आना था वो ऐसे नहीं आए, क्योंकि ये बात है ही नहीं। उसने इंसानों को बनाया, इंसानों के जरिया से ही जो भी आता है वो आएगा। अब यहाँ पर जो दो गवाह हैं, ये दो गवाह बिल्कुल मूसा और एलिया की तरह के ही होंगे, लेकिन मूसा और एलिया नहीं होंगे। इस बात को बहुत सारे जो है खुदा के खादम बयान करते हैं और बयान कर रहे हैं, और इसमें ये है हमें समझने की ज़रूरत है। बात ये ठीक है कि ये एलिया और मूसा हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से रूहानी तौर पर, जिस तरह से हम यूहन्ना इस्तबागी को देखते हैं कि वो एलिया की रूह में क्या है वो चलता था, ऐसे लोग जो मौजूद होंगे उनमें से लोग चुने जाएंगे। दो गवाह जो है खुदावंद चुनेगा, उन गवाहों को लोग जानते होंगे, उन गवाहों को लोग जानते होंगे, और वो गवाह जो है वो उस पावर को, उस अनॉइंटिंग को हासिल करेंगे जो मूसा और एलिया की अनॉइंटिंग है। मतलब वो मसा जो उन पर भी था, वो मोजज़े, वो कुव्वत जो उन पर भी थी, वो मिशन जो उनका भी था, वही मिशन इनको दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, उनमें से लोग जो है वो खुदावंद खुदा चुनेगा। जैसे कि दो गवाह हैं, वो खुदावंद खुदा चुनेगा, फिर वो मूसा और एलिया की रूह में चलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि मूसा और एलिया जो है वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो बाइबल में ऐसी कोई शहादत हमें मिलती, ऐसी कोई बात हमें ज़रूर नज़र आती। तो इस तरह से नहीं होगा। जो लोग मौजूद होंगे पहले से, उनमें से ही ये दो गवाह होंगे, और कोई तरीका नहीं है इस जहान में दोबारा से आने का। हालेलुया। तो क्या है कि हम एक और वाकया देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गरीब लाजर और अमीर आदमी की बात है, तो वहाँ पर जो यही बात बताई गई कि वहाँ से कोई आकर दोबारा से मुनादी नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, जो लोग पहले से मौजूद हैं या जो नबी मौजूद होंगे इस वक्त में, वही मुनादी करेंगे। आज बात ये है कि लोग इस बात को इस तरह से कबूल जो है वो नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है, हमें या आपको ये लगता है कि हम में से ऐसा कोई कौन हो सकता है जो बाइबल के जो नबियों जैसा हो सके, रसूलों जैसा हो सके। तो हमें निजात जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हीं की तरह दी है। हमें जो है खुदावन ने अपने रूह से उन्हीं की तरह भरा है। तो क्या आज वो दो गवाह आप में से नहीं हो सकते? क्योंकि उन मूसा और एलिया का आना जो है वो किसी भी तरह कानूनन जो है बाइबल के मुताबिक वो है ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से आ सकते थे। एलिया जो है, यूहन्ना जो है वो एलिया उस वक्त में वो आ सकता था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करे। तो ये जो चीज़ है, ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले यूहन्ना इस्तबागी ने आके की है। उसने एलिया के काम को उसने पूरा किया है। एलिया का जो मिशन था उसको उसने पूरा किया। हालेलुया। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दो गवाह जो हैं वो आप में से ही होंगे। लेकिन कौन से लोग होंगे? अब वहाँ पर नाम क्यों नहीं लिखा खुदावंद खुदा ने? अब सारी चीज़ें जो है वो मूसा और एलिया की जो कूतें हैं, जो खुदावंद खुदा ने उनकी मेहनत के बायस
उनको दी हैं, और इस 2 गवाह जो रब्बुल आलमीन के दाहिने बाएं खड़े रहते हैं, और वो मूसा और एलिया ही समझे जाते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर देखे गए थे। हालेलुया, वो ही समझे जाते हैं, और वो जो अनॉइंटिंग है वो आज भी जारी है। हालेलुया, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अनॉइंटिंग आज भी जारी है, तो खुदावंद खुदा उस अनॉइंटिंग को आज जारी कर सकता है। अगर खुदावंद खुदा उस अनॉइंटिंग को जारी ना करता, या उसे उस अनॉइंटिंग को ना देना होता, तो कभी भी ये 2 गवाह जो मुकाशफा में है बिना नाम के ना होते, बिना नाम के ना होते, ये नाम के साथ होते। बिना नाम के इसलिए है क्योंकि मूसा और एलिया दोबारा नहीं आएंगे। एलिया आ चुका, मूसा के लिए कहीं नहीं लिखा कि वो दोबारा आए। एलिया के लिए जो लिखा था वो खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो एलिया अलबत्ता आ चुका, एलिया तो आ चुका। अब बात रह गई है, अब आएगा वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे एलिया पहले आया यूहन्ना इस्तबागी के वक्त में, तो इसी तरह से एलिया और मूसा ही होंगे, लेकिन उनकी रूह में 2 गवाह चलेंगे, उनकी रूह में, उनकी अनॉइंटिंग में 2 गवाह चलेंगे, उनकी उस पावर में जो खुदावंद खुदा ने मोजज़े उनको दिए थे। देने तो खुदावंद खुदा नहीं है, लेकिन मूसा और एलिया जो आज भी खुदावंद खुदा की दाहिनी बाहिनी तरफ खड़े हैं, उन के वो मोजज़े, वो पावर जो उनको दी थी खुदावंद खुदा, उनकी रूह के आगे आगे जो है वो इन 2 गवाहों को चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है कि जैसे हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, ये 2 लोग ही थे, ये 2 ही नबी हैं जिनके जो शागिर्द थे वो उन पर जो है उनके उस्ताद का रूह ठहरा। जैसे अलीशा पर जो है वो एलिया का रूह ठहरा, इसी तरह से मूसा ने जब यीशुआ पर हाथ रखे तो उसकी बरकत जो थी, वो जो बरकत उसके पास थी, जो मसा उसके पास था, वही किस पर ठहरा? यीशुआ पर। मोजज़े भी उनके मिलते जुलते, पावर जो उनकी जाहिर हुई वो मिलती जुलती, बिल्कुल उसी तरह से हमें बाइबल में पता चलता। तो इस बात के लिए हमें जो है ज़रूरी है कि हम इस बात की तरफ ध्यान दें कि वो जो 2 गवाह होंगे, वो 2 गवाह जो हैं वो किस तरह से आएंगे, वो कैसे आएंगे। क्या अगर हम इस तरह से समझते हैं कि वो आसमान से आ जाएंगे और मुनादी करना शुरू कर देंगे, तो क्या ये तरीका बाइबल मुकद्दस में कहीं हमें नज़र आता है या ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं हुआ बाइबल मुकद्दस में। तो इसलिए जो है हमें ये आज सोचने की ज़रूरत है। अब वो जो 2 गवाह होंगे वो बिना नाम के होंगे, मतलब जैसा बाइबल में नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ 2 गवाह लिखे गए, उनके काम लिखे गए और उनकी पावर के बारे में लिखा गया। तो अब ये चीज़ जो है हमारा ध्यान जाता है मूसा और एलिया की तरफ, तो उनकी अनॉइंटिंग, उनकी रूह में जो है, जो ऐसे 2 लोग जो चुने जाएंगे और वो चलेंगे, तो ये बात जो है मूसा और एलिया ही के लिए है। लेकिन जो आगे जिसको पावर दी जाएगी वो इसी जहान में से लिया जाएगा। हालेलुया, वो इन्हीं लोगों में से जो आज मौजूद हैं, इन्हीं लोगों में से वो 2 जो नबी होंगे वो लिए जाएंगे। वो भी नबी ही होंगे, लेकिन वो जो है वो मूसा और एलिया की रूह में चलेंगे, उसी कुव्वत में चलेंगे। हालेलुया। अब ये देखना है कि जब भी खुदावंद खुदा ने नबियों को चुना है, जैसे हम दाऊद को देखते हैं, जैसे हम मूसा को ही देखते हैं, तो इनके लिए पहले से कभी बोला नहीं गया। क्यों? वजह ये है, वो खुदा तो जानता है, लेकिन वजह ये है कि जब कोई लायक साबित होता, जब कोई जो है वो खुदावंद खुदा के मुताबिक चलता, फिर वो उसको नबी होने के लिए चुनता। अब देखें, बहुत सारे जो है वो वहाँ पर लोग थे जो मेहनत कर रहे थे। दाऊद भी मेहनत कर रहा था, लेकिन अपने भाइयों में से वही चुना गया।
इसी तरह से जो है हारून अपने भाइयों में से वो ही चुना गया, क्योंकि उसने काम किया, उसने मेहनत की है, फिर वो चुना गया। इसीलिए यहाँ पर जो 2 गवाह होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, वो आप में से भी हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए हमें तैयारी करना है, तैयार रहें। खुदावंद खुदा जो है वो आपको भी चुन सकता है। हालेलुया। ताकि आप मूसा और एलिया की उस अनॉइंटिंग में, उस रूह में, उस पावर में आप चल सकें। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा देखें, जैसा टाइम होता है खुदावंद खुदा वैसी खिदमत को भरपा करता है। जब पालूस के वक्त में, पतरस के वक्त में जब हम देखते हैं तो तब भी नबी जो है वो अपना काम कर रहे थे। पालूस मुनादी कर रहा था, नबी अपना काम कर रहे थे और आके पालूस के लिए वो नबूतें करते और बड़े बड़े काम भी वो करते थे। इसी तरह से आज जो नबियों का काम है वो नबियों ने ही करना है। और कलीसिया में मुनादी करने वाले अलग, शिफा देने वाले, फिर इसी तरह से और कुछ जो है उनके पास ज़्यादा नेम थे। लेकिन जो आने वाला टाइम है वो ऐसा टाइम है कि अब पावर की ज़रूरत है और खुदावंद खुदा जो है वो इस तरह से कामों को करवाएगा, जैसा मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो 2 गवाह जो हैं वो क्या करेंगे, उनके मुंह से आग निकलेगी और वो पानियों को जो है वो खून बना डालेंगे और जितनी बार चाहेंगे तो आफतें लाएंगे इस ज़मीन पर। तो ये देखें, ये उनको इख्तियार दिया है, पावर दी गई है। इसका मतलब है आने वाले टाइम में जैसा मुकाशवा में लिखा है ऐसी ही पावर की ज़रूरत है। और जब ऐसी पावर की ज़रूरत है तो हमें तैयार होने की ज़रूरत है। ये लोग हम में से ही होंगे, ये 2 गवाह हम में से ही होंगे। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा जो है आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और हम नेक्स्ट इसी कलाम को लेकर चलेंगे और हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो ये है कि एलिया कौन सी चीज़ें बहाल करेगा। एलिया जो है वो फिर से जब आता है यूहन्ना इस्तबागी के वक्त में, तो वो कौन सी चीज़ें बहाल उसने की हैं, क्या उसने बहाल किया है, क्यों एलिया को जो है वो दोबारा आना पड़ा। तो ये हम सारी चीज़ें जो है वो देखने वाले हैं। सो खुदावंद खुदा आपको बहुत बरकत दे। और बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा का बंदा पालूस कहता है, बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो। आप ये देखें, वो शिफा की नेमत के बारे में बता रहा है, फिर नबूवत के बारे में बता रहा है, फिर और नेमतों के बारे में बता रहा है, लेकिन उसके बाद फिर कहता है कि बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो। इसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारी नेमतें हैं जिनको हमें हासिल करना है, और भी खुदावंद की जो है वो पावर है जिसको हमें देखना है, जिसे हमें हासिल करना है। क्योंकि जब आगे टाइम जो है वो शैतान बड़ी से बड़ी जो है पावर को वो इस्तेमाल करेगा लोगों को रोकने के लिए, जैसा मुकाशवा की किताब में ही बताया गया कि ऐसे ऐसे मोजज़े वो करेंगे कि जो रास्तबाज हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मोजज़े वो दिखाएंगे। तो जब वो मोजज़े दिखा रहे हैं तो हमें भी तैयार होने की ज़रूरत है उस टाइम के लिए जब पावर की ज़रूरत होगी, पावर की ज़रूरत होगी, बड़े बड़े मोजज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए, मूसा को खुदावंद खुदा ने ऐसे ही मोजज़े नहीं दे दिए, ऐसा नहीं होता। खुदावंद खुदा जो है वो ऐसे किसी बंदे को चुन लेता है, उसको कहता है कि तो नबी होने के लिए चुना गया, पहले उसको देखता है वो कैसा चलता है। ये ऐसे ही होता है कि जब सारे लोग रास्तबाज हैं तो रास्तबाजों में से जो दयानतदार निकलते हैं, जो खुदावंद खुदा के साथ वफादार निकलते हैं, फिर उनको आगे आगे चुना जाता है, फिर उनको जो है वो लीडरशिप के लिए चुना जाता है, फिर उनको जो है वो प्रॉफिट होने के लिए, अपोस्टल होने के लिए, मुख्तलिफ खिदमतों के लिए चुना जाता है। फिर उससे भी आगे कहता कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नबी से बड़े को, फिर उससे भी आगे के जो मुकाम है, जो उससे आगे के लेवल हैं वो मिलते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। ये कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए था। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। आमीन।